Good morning, Namaste and welcome. दोस्तों, today we are going to discuss about some questions related to the topic mathematical logic, matrices and pair of line. Actually, it is a discussion for the test. But in these questions, we also discuss some basic concepts that will be useful for you the upcoming board exam that will be held from 23 April. ओके, तर टेस्टचे प्रश्न मी घेईलच, पण त्याच्यासोबत अजून काही बेसिक असतील त्यांची पण रिवीजन होईल. तो चलते हैं भाई अपने टेस्ट के तरफ. क्वेश्चन नंबर 1. See the question number 1. Attempt any 4. You have to solve any 4 each for 2 marks. So in the question number 1 क्या दिया है भाई? Write the truth values of the following. ठीक, write the truth values of the following. As you know, for every statement in a logic, it may be a true or false. These are called as a truth values. So your first question is 4 is a odd or 1 is a prime number. You may go directly. How? 4 is a odd. Is it a 4 is a odd? No. So it is a false. F. Use the symbol or disjunction. 1 is a prime? No. 1 is not a prime. So how you write the answer? We are considering the answers regarding the board pattern. कसं सुंदर तुमची उत्तर पत्रिका दिसली पाहिजे. Let P 4 is a odd. The truth value is F. Q 1 is a prime. The truth value is F. ठीक. So therefore the statement is P or Q. Truth value of P is F or F. Hence, the truth value of given statement is F. असं सुंदर लिहिलं पाहिजे. Second, if 3 into 5 is 8, then 3 plus 5 is 15. So let P 3 into 5 is 8. The truth value is F. Q. What is Q? 3 plus 5 is 15. The truth value is again F, because 3 plus 5 is not equal to 15. Hence, the statement is if then. So it is P implies Q. What is P? P is F, implies F. As you know, in case of conditional statement, जब ऐसा होता है भाई T implies F, second is a F, then your answer is F. Otherwise it is a true. So दोनों F है, so it is a true. So the truth value of the given statement is equal to 2.
असं सुंदर मांडणी केली पाहिजे, बघायला पण बरं वाटतं ना. चलो सेकंड, if the statements you may read the question. If the statements P and Q are true, यानी कि T, R is a false, find the truth value of following. उसमें है पहला negation of P double implies negation of Q and R, and the second is P or negation of Q double implies R. You have to take P and Q as a true and R is a false. Negation of T, T and F. T का negation F आ गया, T का negation F, ओके. F and conjunction जेव्हा दोन्ही T असले तरच T येतं बरं का. सो इट इज अ फॉल्स. डबल के लिए दोनों ऐसा है, सॉरी, टी टी तर टी लिहितात, एफ एफ तरी पण टी लिहितात. सो आंसर इज अ टी. इसके लिए टी और निगेशन ऑफ टी डबल इम्प्लाइज एफ, टी और निगेशन का टी एफ, दोनों तरफ एफ, आंसर इज अ टी. टी और टी इज ऑलवेज टी. ठीक. थर्ड, matrix A and matrix B both are given. Show that AB inverse exists. Question is not to find the AB inverse. So when the inverse is exist, the determinant of that matrix is a non-zero. That is a basic condition for inverse. तो पहले हमको AB निकालना पड़ेगा. A -2 0 0 -2 -1 3, B 0 1 2 3 1 and -1. You have to go multiplication like this. -2 into 0, 0 into 2, 0 into 1. नीचे से 0 -2 +3. अब आगे -2, ये दोनों 0 हो गए. -2 -3 +3, ये यहाँ, ये -3 और ये +3. देखो भाई क्या बचा, ये 0 1 -2, ये 3 3 कैंसिल, इट इज अ -2. 0 सॉरी, ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए बी. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम. 0 1 लाइक दिस. So 0 plus 2 equal to 2, right? Determinant of AB is not equal to 0. Therefore, AB inverse is exist. Simple. Question number 4. Find K if the slopes of the lines are differ by 4. Your equation of line is this. Three x square kxy. Okay. So therefore, m1 plus m2, m1 into m2, m1 plus m2 minus twice h upon b, m1 into m2 a upon b, minus twice h minus k upon b, इसका जोड़ीदार, तो ये बन गया k. a, it is a 3
upon -1. Find k if the slopes of lines are differ by 4 bar. From given condition m1 minus m2 is 4. आता m1 प्लस m2 माहिती आहे, m1 इंटू m2 माहिती आहे. या तिघांचं एकत्रीकरण टॅन थिटाच्या त्या थेरमला पण लागतं. वी हाव काय हाव m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर m1 plus m2 bracket square like this. So m1 minus m2 4, m1 plus m2 k, 4 into m1 m2 minus 3. ये 4 स्क्वायर 16, ये 12 इधर आया, k square is 4, k is a plus or minus 2. That is your answer. Okay? उसमें है और एक 5 हो जाएगा शायद इधर. चलो करके देखते हैं. See the question. Find the measure of acute angle between the lines. Equation of line is this: 4x square plus 5xy plus y square equal to 0. A is a 4, twice h is a 5, b is a 1. Acute angle between the lines tan theta 2 under root of h square minus ab upon a plus b. Okay? Just put the values. I take here 2 under root of twice h is a 5, तो ये 5 by 2 उसका स्क्वायर, a into b 4, a plus b it is a 5, so 2, ये 25 upon 4 आएगा, 4 चौक 16, 25 मधून 16 गेले, 9 by 4 upon 5. So it is a 2, 3 by 2 upon 5, 2 to cancel, 3 by 4. So tan theta is a 3 by 4, therefore angle theta is a tan inverse of 3 by 5, that is the angle between the lines. So all questions are for 2 marks. Okay? For these there are 2 problems, so it is also for 1 mark. They are also for 1 mark. Here AB निकालना उसका 1, इनवर्स निकालना उसका 1. यहाँ पे है ये इतना लिखा तो 1 मार्क मिलेगा, ये यूज किया तो 1 मार्क. tan थीटा के लिए ये कंपैरिजन 1 और ये कैलकुलेशन 1, ऐसे 2 मार्क के लिए ये सब क्वेश्चन है. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. Let's come to the question number 2. Each question is for 3 marks. इसमें भी आपको 5 दी है, उसमें से attempt any 4. The question paper that I give for you is not total based on the board pattern. Okay, in the board pattern there are section wise question, section 1 or section A, section B, section D. जब हम प्रीलिम की बात करेंगे तब ये सब बोर्ड पॅटर्न की तरफ जाएंगे. हे फक्त एक रिव्हिजन तुमची व्हावी म्हणून ही टेस्ट आपण घेतलेली आहे. चलो भाई. क्वेश्चन नंबर 1. इट इज अ थेरम फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. देर आर 3 थेरम्स इन द चैप्टर.
पहला, शो दैट होमोजेनियस इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ax² ट्वाइस hxy, उसी पे है दूसरा, उसका कॉन्वर्स है वो, और ये है tan थीटा वाला तीसरा. या तिघांपैकी एक थेरम कंपल्सरी असेलच. हां, 3 किंवा 4 मार्काला पण येऊ शकतो. मला असं वाटतं त्याचं प्रूफ ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे. ax² ट्वाइस hxy ये जो इक्वेशन अभी किया था हमने, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, फिर यूजिंग दैट एंड एंगल बिटवीन द लाइन्स tan थीटा 11th वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो यूज करना, कीमती डालना. चिल्लर रे, क्या बात करते, याद नहीं आ रहा है? ये रहा थ्योरम आपके स्क्रीन पे, उसका प्रूफ देख लो एक बार. मेरे मोह मोह के धागे थेरम से जाए जुड़ के, ऐसा ही थेरम आए मुझे 4 मार्क मिल जाए. टुडुम टुडुम टा. चलो जाओ भाई सेकंड की तरफ. तो ये थ्योरम रहा आपका. इन अ क्वेश्चन सेकंड, द प्रॉब्लम नंबर 2, find the inverse by the method of adjoint. The matrix A is a given 1 minus 3 2 3 0 5. ओके, ये है. पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई. 1 minus 3 2 3 0 5, ये ऐसे 1 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 3 0 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 15 माइनस 0. ये आ गए तेरे 25, ये 0, नो सॉरी 30 minus minus plus 30, they are cancelled. So determinant is this. As determinant is non-zero, A inverse is exist. ये तो निकालना ही पड़ेगा बॉस. मेथड एडजॉइंट का हो या रो ट्रांसफॉर्मेशन का हो, निकालना ही पड़ेगा. इन योर बोर्ड एग्जाम ऑफ 2021, मेरा ऐसा मानना है भाई, मेथड ऑफ एडजॉइंट या फिर मेथड ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें तो एक सवाल आने का ही है, आएगा ही 3 या 4 मार्क के लिए. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट. फिर हम जाते हैं माइनॉर्स की तरफ. कुछ याद है भाई? बोर्ड एग्जाम में ये सब आपको डिटेल लिखने होंगे. डायरेक्ट उड़िया मत मारो. M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. देखो अभी ये भानगढ़ क्या है. M11 माइनर के लिए यहाँ पे रुकना है, इनको छोड़ना है. ये चारों 0 माइनस 5 5 0 0 माइनस माइनस प्लस 25 ऐसे. M12 के लिए यहाँ पे जाने का, ये छोड़ने का, -3 - 5 2 0. ओके, ये 0 हो गया भाई, +10,
M13 के लिए यहाँ ये छोड़ने का भाई -3025 -15 -0 M21 ही पोझिशन आहे, हे सोडायचं आहे 3 -250 सो 0 + 10 M22 सेंटर वाला ये छोड़ने का 1 -220 0 + 4 M23 इधर ये छोड़ने का 1325 ऐसे सो 5 - 6 M31 इधर ये छोड़ने का 3 -2 0 -5 ये 0 सॉरी -15 -0 M32 ये छोड़ने का 1 -2 -3 -5 ओके। ये आ गया तेरा -5 -6 -11 लास्ट आखिरी वाला कोपरा 13 -30 ऐसे 0 + 9 इट इज 9। तो ये आ गए आपके माइनॉर्स। यहीं पे हम निकालेंगे कोफैक्टर्स A12 A21 A23 A12 चाहिए A13 A31 A32 ऐसे काय करायचंय मला, मायनॉर कडूनच कोफैक्टर जायचं है। पहला माइनॉर जो है उसके लिए बोलने का नो चेंज, जैसा है वैसा, और दूसरे को बोलने का चेंज, माइनस करने का, नो चेंज चेंज, नो चेंज चेंज, छूटने का, नो चेंज 25, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। तो हम लिखेंगे अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 9 adjoint of A is a cofactor of A, उसका ट्रांसपोज, आड़े वाले उबे, उबे वाले आड़े, 25 -10 4 1 ये आ गया आपका, ठीक। So A inverse is 1 / determinant of A into adjoint of A 1/25, ये सब यहाँ पे लिख दो। असतं सोपं रे, पण याच्यात थोडासा वेळ जास्त जातो, पण मार्क भाऊ पक्के मिळतात, पूर्णच्या पूर्ण। कॅल्क्युलेशन नीट पाहिजे, प्लस मायनसची गडबड नको, ठीक। सी दिस, फिर जाएंगे हम थर्ड के तेरे। क्या है भाई थर्ड? लॉजिक पे है। चलो ये आ गया ध्यान में, नियमन देख लो। ओके, मैट्रिक्स के ऊपर आपको 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। एक 2 मार्क का रहेगा, एक 3 या 4 मार्क का रहेगा। म्हणजे 5 किंवा 6 मार्काच्या प्रश्नासाठी मॅट्रिक्स हे हक्काचं चॅप्टर आहे की जिथे तुम्हाला अगदी पक्के मार्क मिळतात। ओके,
चलो तीसरा, using the truth table, prove the following. Negation of P or Q, negation of P and Q implies negation of P or, like this. So how many letters, how many alphabets? PQ. तो पहले PQ, TT, F, TF. टप्पे टप्पे ने जा, निगेशन P. चलो इसका निगेशन F, TT, निगेशन P और Q. इन दोनों का और के लिए दोनों F है तो F, और के लिए दोनों F तो F, नहीं तो T लिखने का, एक भी T दिखा तो T, F, T. LHS इज कंप्लीट. अभी बनाना पड़ेगा भाई P and Q, दोनों का एंड, दोनों T तो T लिखने का, T, F, उसका निगेशन, अरे बना लेंगे ना भाई, इसका निगेशन टी. ओके, निगेशन P तयार आहे, और हे पण तयार आहे. सो निगेशन P और दिस. काय करायचंय तुम्हाला? इथे बोट ठेवायचं, इथे बोट ठेवायचं, दोघांचा और करायचा. F और T, F और F, T और T, ऐसा. ठीक. हा आणि हा, तुम्हाला वाटलं तर त्याला तुम्ही S2 म्हणू शकता, याला वाटलं तर S1 म्हणू शकता, किंवा तुम्हाला वाटलं की नाही सर असं काही नको, आम्हाला पूर्ण लिहायचं आहे, ते पूर्ण लिहू शकता. करायचं काय, इथून असा बाण मारायचा आहे. या बाणासाठी ठरलाय पहला T, दूसरा F होगा तो F लिखने का, नहीं तो T लिखने का. पहला F है दूसरा T, कोई सवाल ही नहीं. पहला T दूसरा F, यहाँ पे T है तो T लिखो ना भाऊ. तो ये है तेरा TFTT, ये है तेरा TFTT. असं राउंड करायला शिका. देन गिव द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रॉम कॉलम नंबर 4 and 8. इट प्रूव्स दॅट दिस. ते खाली लिहून टाकायचं. काय प्रश्न आहे का रे ते? प्रश्नच आहे, उत्तर छोटस आहे. चलो नंबर 4. फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through the origin, each of which making an angle 30 degree with the line. Okay. The given equation of line is this. या लाईनचा स्लोप काढून घेऊ आधी. क्या आएगा रे? -3/2. आता फाइंड द जॉइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच मेक्स एन अँगल 30 डिग्री विथ दिस. म्हणजे फिगर इज नॉट सो इम्पॉर्टंट, बट दोज हु आर इंटरेस्टेड दे मे बी ड्रॉ द फिगर. इम्प्रेशन वाढतं तुमचं अजून. ही लाइन अशी गेली आहे बिकॉज इट कंटेन्स द कॉन्स्टंट, सो इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये जाएंगी ऐसे, यहाँ पे बनाएंगी 30, ये L2, ये भी बनाएंगी 30. अशा प्रकारची ती आकृती आहे. ओके. लेट स्लोप ऑफ
line L1 or line L2 as M and making angle 30 degree with the given line. So therefore tan theta m1 minus m2 1 plus this tan 30. m1 तो m मानलेला आहे आपण, m2 म्हणजे दुसऱ्या लाईनचा स्लोप मायनस हा m आहे, हा 3/2 1 मायनस 3m/2 tan 30. काही वेळेस या किमती चुकतात बरं का घाईघाईमध्ये. tan 60√3 येतो, tan 45 1 येतो, tan 30 इज दिस. ये दो इसके साथ 2m + 3/2 और ये नीचे 2 - 3m, वो नीचे वाला 2 कैंसल हो गया. स्क्वेरिंग ऑन both sides 1/3 2m + 3 2 - 3m 1/3 इसका स्क्वायर 4m², 3 दूने 6 दूने 12 + 9 2 स्क्वायर 4 2 दूने 4 त्रिक 12 क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इधर आ गया भाई 12m + 9m², ये इधर आ गया 12m² + 36 27. ये यहाँ पे 3m, ये इधर 12 आणि हे 48 ना, प्लस ये इधर 23. पुट m = y/x. So 3y/x², 48y/x plus 23. So it is a 3y², 48xy, 13x² equal to 0. That is your joint equation. Class. Last question. Write the negations of the following. The first statement is this: x plus 8 is greater than 11 or y minus 3 is equal to 6. निगेशन लिहायचे, ट्रूथ व्हॅल्यू वगैरे काही संबंध नाही. आधी मला छान असा पेपर सजलेला दिसला पाहिजे रे. लेट पी ये क्यू ये वी नो दैट negation of P or Q है ना ते. So law of negation P and Q. R असेल तर and होतं, and असेल तर R होतं. So therefore answer, this is in words. X plus 8 is not greater than 11 and y minus 3 is not equal to 6. आता काही म्हणतील सर डायरेक्ट हे लिहिलं चालेल का? चालेल, काही हरकत नाही, पण जरा कसं असं असं दिसायला कसं असं मस्त छान छान वाटलं पाहिजे. म्हणजे एखादी मिरवणूक आहे नवरदेवची, सर घरून निघालो हार घेऊन डायरेक्ट नवरीच्या गळ्यात टाकून दिला तर चालेल का? चालेल ना, लग्न लागेल. पण जरा कसं पारावर जायचं, घोड्यावर बसायचं, वाजंत्री असते असं वाटलं पाहिजे ना नवरदेवाला, असं तसं ते.
Second, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. If and only if. So let P quadrilateral is a square and Q quadrilateral is a rhombus. If and only if, उसका लॉ है भाई. We know that negation of P double implies Q. काहींनी काय केलं होतं? P double implies Q is equivalent to this. हे बरोबर आहे. आपल्याला याचं निगेशन विचारलं आहे. मग इथे निगेशन, इथे निगेशन, इथे निगेशन. So your answer is P and negation of Q or Q and negation of P. ठीक? Then your answer in words. I just give you orally. Quadrilateral is a square. And वापरा, but वापरा, दोघं शब्द चालतील, पण दोघांपैकी एकच वापरा. Quadrilateral is a square, but it is not a rhombus. Or quadrilateral is a rhombus, but it is not a square. That's all. एक छोटीशी टेस्ट होती, या बऱ्यापैकी बऱ्याचशा गोष्टी आल्या. इथे लॉज ऑफ निगेशन मध्ये अँड असेल तर ऑर येतो, म्हणजे तिसरा नियम सांगितला. इथे डबल इम्प्लाइजचं निगेशन झालं. जर फक्त असं असेल P implies Q, तो उसका निगेशन P ऐसा आता है. ओके. So from the chapter logic, I think there are also questions for 5 marks. 2 marks का MCQ भी आ सकता है या फिर कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है. 3 मार्क के लिए तो बॉस ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन आना ही चाहिए, आएंगे ही, ऐसा कुछ है. सो इनवर्स का आएगा एक थ्योरम आएगा स्ट्रेट लाइन का, एक ट्रूथ टेबल का. ऐसे 9-10 मार्क आपके पक्के हो जाने चाहिए. ठीक. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए नमस्ते. एंड क्या, खाते रहो, सोते रहो, ऐश करते रहो, लेकिन कहते रहो आई लव द मैथ्स. ऑल द बेस्ट.